increased imports into the country. Do you agree or not? Good afternoon, friends. I'm Abhishek Gupta. I want to speak about the Indian economy. First of all, what is exactly it is? It is including all the important export of a country, and along with the domestic trade, through which the government generates the revenues. Okay. Now the question comes: import is being increased from past time, but the increase in import is just because of lack of quality of our products. It is not just because of materialism. If we get the good product in lower cost, then every nation wants that they should import the product. Well, when we talk about the impact of materialization on economy, I think materialization has worked like a nitro booster to the economy. जैसे हम एक कार को जब नाइट्रो बूस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह मटेरियलाइजेशन ने काम किया इंडियन इकोनॉमी पर. कारण ये कि जब मटेरियलाइजेशन आता है उसके कारण कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है. बट आई थिंक इसमें की फैक्टर ये रहा कि जो कंट्री प्रोडक्शन में आगे रह पाई वो इकोनॉमी उसकी बहुत सुधर गई, और जो कंट्री प्रोडक्शन में वीक रह गई उसकी इकोनॉमी इतनी नहीं बढ़ी. एग्जाम्पल लेते हैं हम चाइना और इंडिया का. चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होता है एनुअली $90 बिलियन का, और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इंडिया से चाइना में कितना एक्सपोर्ट होता है तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे सुन के. उसके कंपैरिजन में सिर्फ वो अराउंड $10 बिलियन होता है. तो देखिए चाइना की इकोनॉमी कितनी सुधर गई, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा था, वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी थी, रिसोर्सेज थे, जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया, इसके कारण वहाँ की इकोनॉमी सुधर गई. यस, आई एग्री दैट कि इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं तो सब सही बात है कि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट ही भारत है. तो इस ज़्यादा इंपोर्ट करने से क्या है कि हम हमारी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमारी करेंसी अगर हम कहीं और से बाहर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो डिवैल्यू होना ही है उस चीज़ को. I would like to raise a point. Hello everybody. I don't think being materialistic is a bad thing. Okay. But nation comes first, like Puneet sir said, कि कुछ भी हो जाए nation पहले आना चाहिए. So being materialistic for your own country is not bad. We say कि China से हम import कर रहे हैं. Be materialistic, but for the Indian goods, like Patanjali, उन्होंने अभी 10 crores का उनका turnover है. So why not boycott the foreign goods and be materialistic for your own country's goods? So that will obviously increase the GDP of the country, and obviously the country will fulfill. I would like to Yes, sure. I would like to say against your opinion. Very good afternoon, everyone. So first of all, and being materialistic for your own country takes a innovation and technology factor in very crucial point. Because if you have innovative product, if you have anything which has been new in market, which attracts people, then you will go for it. But what really happening is we find such kind of products and such kind of services from outside of country. So Achha, okay. we are importing them, and as my colleague, as my friend said, Deepak, yeah, it is devaluing our money and also currency, and also it is taking our hard-earned money and we spend it easily on them. I will again interrupt here. See, we are not talking about कि हम materialism हो गए इसके कारण imports बढ़ रहा है. We are talking about कि जो products की requirement है और हमारा जो materialistic view होता जा रहा है. So the youth, या मैं आप लोगों हमारी इस समय की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, those who are still studying. आज से 15 साल पहले भी एक यूथ था, 20 साल पहले भी यूथ था. अगर वो सिचुएशन ही चलती रही तो हम जिंदगी भर दूसरों पर आश्रित रह जाएंगे. अगर हम सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में सोचते रहे और उनका लाभ लेने के बारे में बस सोचते रहे, हमने उनका प्रोडक्शन चालू ना किया, हमने उन्हें बनाना चालू ना किया, तो हम दूसरों पर आश्रित रह जाएंगे. एंड देयर वेयर आई मीन कि हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं है. हम सिर्फ उन सुविधाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम चीजों को पाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते. So just a second, I want to contradict your point. What's your name? Hasmukh. Hi Asma. The point you raised कि कंपनी हमें ऐसे innovations नहीं मिलते हैं.
Okay, you know any company needs money to run. Do you agree? Sorry. Any company needs money to run its research department, है ना? Yes. एप्पल आज इतना ज़्यादा क्यों आगे बढ़ चुका है? बिकॉज उसकी जो प्रोडक्ट्स की सेल है वो ऑब्वियसली 51% ऑफ ऑल द मोबाइल फोन्स ज़्यादा है. तो इट्स गेटिंग मनी, इट्स वर्किंग ऑन इट, इट्स प्रोड्यूसिंग, इट्स इनोवेटिंग. that's what the point is. Boycott foreign goods, accept the Indian goods. हम पैसा देंगे, they will put that money into research, innovation होगा. So it's us who has to do it. Okay, you agree? Yes, sir, I do agree. But the fact is we started buying the products of companies which are outside of country. We keep buying them. Suppose, for example, I have a Micromax phone. Yeah, I'm just getting on this. For example, how many of you have brought jeans of this Levi Strauss company? There How must many be- of you use aloe vera of Patanjali now because it's emerging? Well, my family use Patanjali. Guys, it's developing. It's The developing. change is coming. The point here is youth is becoming materialistic. I'm talking about the change. Let कि हाँ, the me change is coming. move Gentlemen, this I would like to discussion interrupt into it. एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ. We are not talking about purchasing an imported product. It is not about purchasing an imported product. पैसा तो उतना ही खर्च होगा अगर मैं 100 रुपए का डिओड्रेंट इंपोर्टेड खरीदूं या 100 रुपए का हिंदुस्तानी बना हुआ. पैसा तो खर्च काहे में हो रहा है? It's actually getting spent into a depreciating asset. जिसका शायद मैं पता नहीं कितना यूज करने वाला हूं. और मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट ऐसी ही चीजों में जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट. हम में से कितने बच्चे ऐसे होंगे, मेरा क्वेश्चन मैं इसलिए पैनल से पूछ रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, जो नहीं, हम में से कितने का मतलब होता है द 61% ऑफ द यूथ. Sir, I am a youth. हिंदुस्तान में I am a youth. 61% यूथ है, उसमें से अगर 6 लोग यहाँ बैठे और उसमें से एक मुझे बोल रहा है कि मैं सेविंग करता हूँ, तो आई एग्री कि एक तो करता है. Just a second. तभी हम चल रहे हैं. Yes sir, I agree. जो लोग बाहर रहते हैं, मैं भोपाल की हूँ, मैं इंदौर में रह रही हूँ, आई गेट पॉकेट मनी. आई ट्राई कि 10,000 की अगर पॉकेट मनी मिली है तो एटलीस्ट मैं 2,000 सेव माय करूँ. गॉड, 10,000 का आपको पॉकेट मनी मिलता है. दैट मींस 10,000 का पॉकेट मनी फॉर व्हाट बेटा? I drive और पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि 5,000 तो मेरा लगता ही है पेट्रोल में. So it doesn't. That's my personal issue. आप कॉलेज से घर और घर से कॉलेज और 50 इसके अलावा kilometers of my college is there. इतना डिस्टेंस है तो आप मान के चलो 6,000 तो कैलकुलेशन के मुताबिक है. Anyways, that's a personal issue. But अगर कोई यहाँ पे, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे कभी एम्प्लॉयड होंगे, हम एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि यार आगे इतनी बड़ी लाइफ है. लड़के ये सोचते हैं कि यार शादी होगी, सेविंग्स करें ताकि हमारे अपने माँ बाप को हम हेल्प करें मैरिज के वक्त. लड़कियाँ ये सोचती हैं. आई पर्सनली बिलीव, मैं एक यूथ हूँ, मैं ये सोचती हूँ 15 दिन पहले न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट था 5% बेरोजगारी और बढ़ गई है. आई नो 5% बेरोजगारी और बढ़ गई है. सर, बेरोजगारी बढ़ गई है, बट माय पॉइंट हियर इज कि इफ आई एम एम्प्लॉयड, कल मुझे 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिले तो मैं उसमें ये सोचूंगी कि मैं मानता हूँ जब आप करूं. एम्प्लॉयड होगे तब आप सोचोगे, क्योंकि तब आपको पैसे की कीमत पता तभी लगती मैं है. I think हम लोग Right? सभी छोड़ के डिबेट में. हाँ, राइट. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास पैसा का सोर्स ऑफ इनकम, इफ आई एम नॉट द अर्निंग पर्सन, तो ये जो थिंकिंग है ये तभी शायद स्टॉप होती है जब मैं अर्निंग करना चालू करता हूँ. व्हाई नॉट नाउ? सर बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, तो हम Exactly. लोग एक सोप यूज करते थे. हाँ. उसमें पूरी फैमिली यूज कर लेती थी. Okay. आज बात करते हैं तो चेहरे के लिए अलग से फेस वॉश आने लग गया है. ऊपर Yes. शैम्पू होता है, उसका कंडीशनर आता है, और उसके बाद भी 2-4 अलग अलग तरह की क्रीम्स आती है. तो ये बात है Exactly. मटेरियलाइजेशन पे हम लोग को. Exactly. पहले सर, धोती आप पहनते पैसे थे और बचाने ऊपर की- कुछ नहीं पहनते थे. आज जीन्स पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं. तो ये materialization है. गाइस देखो, सी that is different. That is not materialism. That is development. आगे बढ़ता जा रहा है. आप मटीरियलिज्म उसको मत मैं बोलो. आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ कि जिस टाइम हम लोग धोती पहन के भी जिंदा थे, आज जीन्स पहन के भी जिंदा है. तो बात करते हैं आज हम खादी, अगर लेवाइस से कोई जीन्स लेके आता है. If you permit, please, the other ones can speak a little bit. हाँ, sure, you can speak. You just have to raise a point. Just raise a point. I'll show. I didn't get the opportunity. Sorry. You just go through it. आपको मौका लेना पड़ता है. सी फ्रेंड, जस्ट लाइक यू सेड, हम लोग धोती पहन के भी रह सकते हैं. ओके, धोती पहन के तो हम आज भी रह सकते हैं, बट इट्स नो ट्रेंड नाउ. वी नीड टू मूव विद द वर्ल्ड.
That's why we call modern people. अगर हम लोग धोती पहन के रहेंगे या इवन फटे-फूटे कपड़े में रहेंगे तो we will not be भाई साहब आज की सोसाइटी कौन सी मॉडर्न है? जीन्स का आविष्कार 100 साल पहले हुआ था, आज तक पहन रहे हैं। सूट 200 साल पहले इंग्लैंड में चलता था, आज हम उसको यहाँ पे पहन के सोचते हैं मॉडर्न बन गए। और बात करें हमारे पॉलिटिशियंस की, आज तक भी धोती कुर्ता पहन के भी इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरा प्राउड है, मेरी कंट्री का प्राउड है। But there is a modernization in how to make the clothes, just like smart. ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आप किस चीज को I would like to hear contestant number 3. Thank you so much, sir. Trying to speak for a long time. सर हम कंज्यूमरिज्म की मटीरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा ही है ना अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो आप मुझे बताइए पैसे कहाँ पर जा रहे हैं? हम में से किसी की वो इंडस्ट्री होती है, हम में से किसी का वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे हम वो I agree, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो बैंक्रप्सी आई है, इकोनॉमी के अंदर जो क्राइसिस आता है, वो क्यों आया है? बिकॉज जो आपके पास जो पैसा था, जो आपके पास सेविंग्स थी, वो सेविंग्स की जगह आपने उसको ऐसी जगह यूज करना चालू कर दिया और आपके पास सेविंग्स का अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है, आपकी लाइफ और रिस्की होती जा रही है और इकोनॉमी एक्चुअली वी आर गेटिंग डाउन। हम इस तरीके से तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर देश में पैसा ही नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? इसलिए तो हम एफडीआई के लिए मांग रहे हैं, उसके लिए लोग बाहर से लोगों को बुलाए हैं कि भाई आपके पास पैसा है, आप आके लगा दो। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास लगाने की ताकत है, और हमारा यूथ वो आपके बनाए हुए प्रोडक्ट ले लेगा, क्योंकि हम बनाएंगे तो वो लेगा नहीं। बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, बट जैसे मैम बता रही थी कि हमें बाहर की कंपनीज को बॉयकॉट करना चाहिए। वो बोली चाइना की आप प्रोडक्ट्स को मत लाइए, बट प्रोडक्ट्स को मत लाइए, इम्पोर्ट मत कीजिए। बट मैम आपको लगता है ये पॉसिबल है? हम ऑफिशियली बॉयकॉट कर सकते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चाइना इंडिया रिलेशंस को हम नहीं करेंगे। Boycotting China's product is not possible all around the world because they are the best in electronics. If we boycott their product, we will lag behind in the technology. Okay, I'm so saying we should not go for boycotting the product. At least we should adopt the technology because they are the masters in that. Okay, sir, I accept your point. The thing is not boycott, but just अगर हमारी उसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव अगर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में है, सो वी शुड अडॉप्ट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही बॉयकॉट कर दो, ये अगर माइक चाइना का है तो नहीं मुझे यूज़ नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ वी हैव एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ तो ऐसा हो रहा है। इंडियन है तो नहीं लेना है, सोनी जापान का है तो ले लेना है। बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, बता के नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। सर वो कंपनीज प्रेफरेंस किसी और को देना इज आल्सो बॉयकॉटिंग समवन एल्स। ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाई इंडियन कंपनीज, वो कोशिश कर रही है। हमें ये चाहिए इंडियन यूजर्स को कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स थोड़ी देर साइड में रख के इंडियन जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको यूज करें। जैसे आप देखिए अभी दिवाली आने वाली है। बट सर यही तो दिक्कत है ना, मेरे घर में जब मैं सोनी का एलईडी टीवी लाता हूँ तो पड़ोसी तारीफ करता है, माइक्रोमैक्स का टीवी ले आऊंगा तो बोलता है ये क्यों लिया है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो वो मटेरियलिज्म है कि वी आर सो ब्रांड कॉन्शियस, और यही सब चीजें हैं जो मेरी सोशल इमेज को धक्का देती है। It is all about marketing strategies that companies play. They never said just come and just buy our own product. It's our perception that Sony gives a good quality, then we should buy it. मैं भी तो बेटा उसी परसेप्शन की ही लड़ाई लड़ रहा हूँ आपसे कि ये परसेप्शन आया कहाँ से है। सर देखिए लोगों का काम तो है कहना, Marketing strategies. हमें चाहिए कि हम government allows them to do this sort of business, and it's legal business. It's not illegal. If government is allowing, there is some sort that government is also getting benefit from it. So we can't say that purchasing Sony's TV is from Japan, so it's wrong. जेंटलमैन एक फैक्ट इंक्लूड करना चाहूंगा। नहीं, हमने वॉलमार्ट के लिए तो रिटेलर्स के हित में हमने मना कर दिया कि आप रिटेल में नहीं आ सकते। 100% एफडीआई रिटेल का कितना विरोध हुआ? Actually सर बहुत विरोध हुआ, क्योंकि बहुत सारे घर परिवार दांव पे लग गए थे। बहुत रिटेलर्स की इनकम जो थी उनके घर को चलाने के लिए वो सब दांव पे लगा हुआ था। तब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब चीजें एक्सट्रीम हो जाती हैं और वो हमारे द्वारा होती हैं, और जब वो मेरे परिवार या मुझ तक पहुंचती हैं, मैं तब जागता हूँ और उसके बाद मैं उसका विरोध करता हूं। और जब तक वो मेरे पड़ोसी के घर में है, मुझे क्या, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। पिछले डिस्कशन में मैंने देखा, सो व्हाट इफ आई एम दिस, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। बट उन्हें ये नहीं पता हम सब एक साइकिल का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ साइकिल। कोई भी एक व्यक्ति के अफेक्ट होने से वो पूरा साइकिल अफेक्ट जरूर होगा। अगर हमारा पूरा यूथ, अगर आप सब पढ़ने वाले लोग, अगर आप सब बोलो कि हमें बिजनेस करना ही नहीं है, वी वांट टू डू ओनली जॉब्स, तो शायद देश को आने वाले समय में 15-20 साल बाद मैं कोई नया प्रोडक्शन मैनेजर कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सब एक नौकरी करना चाहते हैं। और मुझे सीरियसली बाहर से कई लोगों को बुलाना पड़ेगा कि साहब आइए यहाँ बिजनेस करिए, क्योंकि यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं।
We are laborers. सर हम चाहते हैं कोई आए। पॉइंट से थोड़ा भटक गए, हम लोग इकोनॉमी की Yes. बात कर रहे थे। मैं एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि वेनेजुएला में गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण वहाँ पे आज ऐसे हालात है कि टिश्यू पेपर बेच के उनकी मतलब करेंसी के रूप में टिश्यू पेपर्स यूज कर रहे हैं। ये गवर्नमेंटल फॉल्ट है पब्लिक से ज़्यादा, पब्लिक का फॉल्ट इतना नहीं है। हम लोग हमारी बात करते हैं तो हिंदुस्तान में आप लोग कितना पता है कि हमारे यहाँ कितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज आ चुकी है, कितना जॉब क्रिएट हुआ है। टाटा, मारुति, हम लोग ह्युंडई तक ले ले तो ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी इंडिया में होने लगा है अब जाने तो। और ये चीज़ें जॉब क्रिएट कर रही है, ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, ये चीज़ें पैसा इंडिया में ला रही है। आज मेरे देश का लेबर कमा रहा है, इंडिया जाना जाता था सर्विस प्रोवाइडर के रूप में और चाइना जाना जाता था मैन्युफैक्चरर के रूप में। लेकिन आज हमारी ड्यूल इमेज है, हम लोग मैन्युफैक्चरर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। And Being materialistic, Actually, being materialistic, I don't think that it will affect the economy in either way. It just improve our economic conditions and it also improves the standard of Indians. Because if money will come, government will get large revenue and it will invest over the people. So it will raise ultimately to the people only, directly or indirectly. Government has no means to use this money in any other way. If they purchase in any department, like in defense or either in any department, it is just for the sake of India. If money is coming to the government, it is directly or indirectly for the sake of people. So being materialistic, I think it should be good for the economic conditions, and that's why we are seeing it nowadays. sir, I would like to oppose your idea as because suppose if one is investing in the products which are of luxury items, which are not essentials. If we focus on luxury items, then we will not be able to provide essential goods and services to every person in this country. See, And luxury products are not for the every people. They Yeah, are but for the because prime of living materialism, people. because of materialism, there they are is a going. class of people in India who always try to have luxuries, just like Jaguar, Range Rover. Why Tata bought it? Because there is a class of people in India who always want to have Range Rover or Jaguar. They neither want the nano car, or they don't want i20 to ride. Because there is जनरल बताना चाहूंगा कि लग्जरी And I को would पहले हम like लोग to- समझे कि लग्जरी चीज क्या है। जो चीज हमारे लिए यहाँ पे लग्जरी है वो अमेरिका में आज आम लोगों की जरूरत की चीज है। वो लोग 80s में 70s में फ्रिज यूज करते थे, हमारे 90s में इंट्रोड्यूस हुआ तो जिसके घर फ्रिज होता था लोग बोलते थे यार बड़ा आदमी है बहुत। तो लग्जरी को पहले समझे कि हमारे लिए लग्जरी का है और ग्लोबल बेसिस पे And लग्जरी। I would like to contradict your point. Just a second. I would like to contradict your point. You said luxuries देखो, differentiate करो, needs differentiate करो. The thing is, मेरे पापा मुझे सोनाटा की घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? But he has the ability and capability कि वो मुझे राडो की घड़ी गिफ्ट करें. So he is gifting out of love. That is not being materialistic. But So it there is is a not- difference. जिसके अंदर capability है, आज अगर मेरे फादर ने मुझे स्कूलिंग अच्छी दी है, it was not कि स्कूल अच्छा है, फेम है, फेमस है. He was not being materialistic, but he has the capability कि हाँ मैं अपने बच्चे को एक अच्छा education दे let सकता me हूँ. define materialistic here. What is meant by materialism? It is buying things we don't need. The very first statement of materialism says buying things we don't need with money which we don't have. Right? Credit card से सामान खरीदना, इसको installment में हम पे करेंगे. So buying things we don't need with money we don't have, but just to impress people that even don't matter to us. So there is one more definition. It's the attitude of being possessed by the physical matter, which includes everything. I mean, goods. Exactly. That is being obsessed by that physical matter. We actually don't need it. आप सही बोल रहे हो कि आप टाइटन का सोनाटा वॉच खरीद के अपना काम चला सकते हो, but still we want to earn to wear a Rado. Sir, अगर हम ये महंगी चीज़ें पे अगर हम आ ही गए हैं तो लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल. अगर मेरे पास राडो की घड़ी है तो दैट इज़ मेरे पापा ने मुझे चलो गिफ्ट करी है. हम अगर इन चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे और अगर हम ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो डू यू थिंक इन चीज़ों से डेवलपमेंट होगा? ये चीज़ें बन रही हैं इसमें. अगर हम एप्पल का फ़ोन लेते हैं, हम उसे ले रहे हैं, वो अपना जैसे कि मैंने कहा कि इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हम नहीं करेंगे तो जिसकी जितनी कुव्वत है वो ले रहा है जिस
तरीके से जितनी जिसकी कुब्बत Sir, I would है, like to answer. इट्स नॉट बट अबाउट इसके पहले वाला जो डिस्कशन था, it's दैट्स not व्हाट वी about वर being- डिस्कसिंग कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी I'm पे, not पर्सनल possessed with रिलेशनशिप पे. it. Sir, I'm not possessed with it. I like it. I'm not possessed with it. If I It's would, not matter of you. It is not matter of you. It is the matter of nation where we are discussing here. I'm a youth, so I'm speaking. हाँ, मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं कर सकता ना बात. यहाँ डिस्कशन एक बच्चे के लिए नहीं, यहाँ डिस्कशन I don't 61% पॉपुलेशन विच इज यूथ इन इंडिया, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे नेशन हैं. में आप जैसे यूथ भी है, बट ऐसे यूथ भी है जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड है. सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सोशल स्टेटस का प्रॉब्लम आ जाता तो है. मैंने वही कहा ना, जिसकी जितनी कुब्बत है वो उतना करता है. मैंने ये कहा ना आपके मैं- आप पॉइंट. उसको परफेक्टली मैं एग्री करता हूँ कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने राडो की वॉच खरीदने के लिए कुछ क्राइम करा है, तो इसके अंदर राडो की वॉच की गलती तो नहीं बता सकते आप. नहीं, ये crime उनकी नहीं है, गलती है. crime- मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट कि आप किसी भी No, see, my point would be here, if I am talking about Indian economy, my point would be here कि we have many watches made by Indian, right? और शायद वो भी इतनी luxury watches हैं, बहुत कुछ Sir? है, but we are still obsessed. और अगर उस चीज से मैं imported products को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ, because they give me a sense of let's say social status, because I am using those imported products, और उसके कारण अगर देश की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, तब मैं कहता हूं कि मटेरियलिज्म गलत है यहाँ. सर ऐसी नहीं, बहुत सी बार क्वालिटी का भी डिफरेंस आ जाता है. आप कंपेयर कीजिए बाहर की कंपनी अमेजॉन, इंडियन कंपनी फ्लिपकार्ट, दोनों की सर्विस क्वालिटी में आप कंपैरिजन करें, आप देखेंगे कई गुना डिफरेंस है. अमेजॉन इज मच बेटर देन फ्लिपकार्ट. अब कंज्यूमर तो सर यही चाहता है ना कि उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, बेस्ट सर्विस मिले, तो उसके लिए तो वही चाहेगा. लेकिन अगर हमें इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उन्हें उतना कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा. सर बट उसके अंदर अगर हम उसमें काम चला सकते हैं, सपोज अगर हमारा जहाँ नहीं, काम चलाना, प्लीज डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक अगेन. आप सही बोल रहे हो कि इंडियन कंपनीज को उतना कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और वो लेवल कैसे होंगी, वो लेवल बनाना पड़ेगा. वो कैसे होंगी. एग्जांपल लेता हूँ मैं. That's what I am asking कि वो कैसे होंगी. अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे सर, अगर हम सेविंग करेंगे एंड इफ वी इन्वेस्ट, No, it is not because of your saving that Indian companies will get competitive. ओके, कंपटीशन आपका तब होगा जैसे आपने बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक कैपिटल, दूसरा इंटेलेक्ट. टैलेंट. आई नीड दैट इंटेलेक्ट. और मेरे को वो मटेरियलिज्म के कारण वो इंटेलेक्चुअल्स की कमी होती है जो मेरे पास नहीं है, और इसलिए इंडियन कंपनीज पीछे हैं, एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है. क्योंकि जिसके पास इंटेलेक्चुअल है वो कम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, बिकॉज इंडियन कंपनीज विल पे हिम लेस एज कंपेयर टू फॉरेन कॉम्पिटिटर्स फॉर श्योर. लेकिन वो बच्चा नहीं करना चाहता, वो उस थोड़े से पैसे के लिए एक एमएनसी के साथ काम करना चाहता है. सर वही है सर, दिस इज अ चेन ऑफ दिस ट्रेंड. Suppose if you want to break this chain, somebody have to take initiative, and we are the person who have to take initiative. This youth Sir, has to take I initiative. would like to add one more point in your what you have spoken. That you said a person from India migrate to other countries and just do research for them. But is that exactly that India has a such caliber that they can provide them laboratories, the equipment that they want? India don't have a means, or industries don't have means to provide them a machines of crores of rupees to the single person. But there is a facility that they are free to develop and free to research for anything. In India, you know about the missile man, Dr. APJ Abdul Kalam Azad. He said in his statement, it took me 6 years. Means I can develop this particular missile before 6 years. But due to the lack of availability of products, I was not able to make this. तो अगर उनकी सोच ऐसी होती, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस समय वो ये सोचते हैं कि यहाँ तो, मेरी बात सुनो बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ 6 साल लगेंगे इस चीज को बनाने में, एंड आई विल गेट दिस मच, आई विल गेट दिस मच, लेट्स से हैंडफुल ऑफ मनी, आई विल गेट दिस मच. यही मिसाइल अगर मैं जाके यूएसए के लिए बनाऊंगा, सोचो उन्हें क्या मिलता. Sir, That is where materialism I am counting, and that is how we are getting it affected on Indian economy. Sir, if you are talking in case of Dr. Abdul Kalam, he is not worried about the money anymore. We all know very well this. But one statement he made there, अगर इस 6 साल में अगर मेरी डेथ हो जाती, तो ये टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पीछे चली जाती, और ये भी पॉसिबल था कि वो टेक्नोलॉजी कोई नई कंट्री लेके आती और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता. अगर वो फैसिलिटी उनको जल्दी मिलती है तो आज इंडिया की इकोनॉमी भी आगे होती है. Okay, conclusion remark from everyone. तो it's not Conclusion remark from contestant number 1. Wait. Conclusion remark.
यही है कि मटेरियलिस्टिक होने से सर कहीं इनोवेशंस और डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से अगर चाह रहे हैं कि इनोवेशंस अच्छी भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम अफेक्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं कि अगर किसी के पास ये चीज़ है और हमें वही चाहिए, तो हम कुछ और हमसे खुद से नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो कुछ है तो हम डायरेक्ट उसी पे जाते हैं कि जाओ और उसे खरीद लो और बस अपने पास ले आओ। ओके नेक्स्ट। Sir, as being a materialistic, the effect on Indian economy is very bad because we are developing country, and as we talk about the product and innovation from the other countries technologies, so we import them. So what we need to do is a part of chain. Suppose if you start importing them, then the people will buy it. What we have to do, we have to give support to the Indian companies so that they can also be of that level. So if people will take initiative, if they start using their product, then it will give them boost, and at some day we will definitely reach their level. So I think materialism is very bad for our Indian economy because we are developing country. So, and also it is also decreasing the saving rates of every person. Next. To conclude, I would like to say that materialism has boosted Indian economy, as I stated in the earlier part, and I think only thing that the Indian industry needs to do is it needs to raise its standards so that it can compete with the global industry, and it can leave its mark, because materialization has created a big scope for industries to make profit. Next. According to me, materialism in case of Indian economy, I think it boosts the Indian economy in past few decades, and because India is not in a condition to develop all the technology, so it is good for the India to being materialistic in the some aspect, and nowadays India is also working for on homeland production. So as well as the materialistic, they are trying to being a self-independent stand in the world. So but this is only possible only after being materialistic. Okay. Next. जैसे कि संदीप सर ने कहा था कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, अच्छी और बुरी होती है। तो इस सिक्के के दोनों पहलू हैं, हमने दोनों पहलुओं पर बात करी, थोड़ा सा बाइफरकेट हो गए, अलग चले गए, लेकिन बात करता हूँ तो एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि हम लोग अपना लेवल बढ़ाएं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को ना देखें, हम लोग साथ में चाइना को भी देखें, ग्लोबल लेवल पे अपनी इमेज भी देखें। और चूंकि टॉपिक से भटक गए थे, टॉपिक बहुत बड़ा है, आखिरी में से इतना कहना चाहूँगा कि ये गलती हमसे ना हो कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, धूल तो चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। I would like to conclude my point. I started with कि you should boycott foreign goods and accept the Indian goods. I would like to stick with that. Indian economy can only increase when its GDP increases, and GDP will only increase when its product and services is accepted by its own people. So boycott, just if you have the alternative product which is Indian, just accept it. And one more thing, being materialistic is not bad for your own economy. Promote startups, promote entrepreneurship. This will obviously increase the GDP and nation comes first. Thank you. Ma'am, any comment from your side? Hello. All the participants were equally good. I cannot say except for the participant one, he did not speak anything. Only the concluding remark he has given. The points you people raised were really good. But कहीं ऐसा नहीं लगता ये सब किताबी ज्ञान था, है ना? एक इम्पोर्टेड परफ्यूम मैं आपके सामने रख दूँ और एक वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम आपके सामने रख दूँ, ऑब्वियस सी बात है कोई भी बंदा कौन सी उठाएगा, इम्पोर्टेड वाली उठाएगा। मैडम ये जो है हमारी पार्टिसिपेंट नंबर 6 बिल्कुल सही बात बोली है, अगर आप में कुव्वत है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, है ना? मैं भी इसी बैग नहीं खरीदूंगी, मैं भी दा मिलानो का बैग लेके चलती हूँ, है ना? तो ये अपना अपना शौक है, अपना अपना टेस्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, आर यू बीइंग मटीरियलिस्टिक और नहीं, ठीक है ना? सो योर चॉइस,
आप मटीरियलिस्टिक होते हैं तो कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है, एंड यू आर सम वे और द अदर एडिंग ऑन टू द इकोनॉमी. थैंक यू. अनुराग सर. सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. जैसा भी मैडम ने बताया, मैंने भी एक नंबर को सबसे लास्ट में ही सुना है. सभी के पक्ष विपक्ष जो था, सबने अपने अपने पक्ष बहुत अच्छे रखे. मैडम ने भी रखे, इन्होंने भी बहुत नंबर 2 आई डोंट नो कहाँ के हैं, पर इन्होंने किला जरूर लड़ाया कि उसका विरुद्ध. तो जो पक्ष में हैं उन्होंने अपने पक्ष रखे, चूँकि विषय इतना अच्छा है कि उसके पक्ष में बोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. पर विपक्ष में बोलने के लिए दम चाहिए, विपक्ष में बोलने के लिए तर्क चाहिए, विपक्ष में बोलने के लिए साहस चाहिए. तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष में बोलने वाले को भी उतना ही ये मिलना चाहिए जितना पक्ष में बोलना. क्योंकि सब्जेक्ट इतना इजी और ये है कि इसमें पक्ष में बोलना बहुत आसान है. इम्पोर्टेंट चीज़ सभी को पसंद है, इसलिए वो सभी की पसंद भी बन सकता है सब्जेक्ट में. पर विरुद्ध में बोलने के लिए, जैसा पहले कहा, साहस चाहिए. सभी ने अच्छा किया मेरे हिसाब से. अगर इसमें सुधार की गुंजाइश की अगर अपन बात करेंगे, अगर वो होता है बाद में सेशन, तो उसमें बताया जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती है. पर अभी इक्वली सभी ने बहुत अच्छा किया. थैंक यू सर.